अपने पास सामान रख के उसको बेचते हैं, सो दैट इज द होल पॉइंट। उनको क्या पेन होते हैं, उनका कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। Inventory is all that we're going to talk about. One thing is there that the more you interact and the more you are involved, the more you will gain. As simple as that. So, is everybody ready? One big hack to uh, to to gain the most here is a very simple tool, and that is if you keep your phones on silent. Very simple tool. So please, if you have your phones in your hand, if you have your phones in your bag, if you have your phones in your pockets, please keep them on silent. Ankur, 2 minutes. I'm just taking everyone's phones away. He is very particular. Phones away. Okay, we are good. Awesome. So why is inventory management important, and what exactly is it? If we don't understand this question, then we'll not be able to understand and build the best IMS for our own individual companies. So I honestly want to interact if people that are on the seminar, like Rohan is there. What exactly do you do, and why do you think is inventory management important? Vinny ji, if you could collect answers and let's interact. May I speak? Please do. Ankur bhai, I think inventory management in my business is the whole and soul. We don't even have PMS. We are into jewelry, wholesale and retail. Specifically, All right. we are putting this across our retail stores. We have 4 stores in the Y. Inventory has been the main issue. We have traditionally been a very overstocked business, and All right. as what RJ has kind of taught us now is that this is a myth that we have been fed, and we have been feeding other people also, that we need more and more and more variety to be able to grow our businesses, and we keep on using that, and that's been the only lurch that has been stopping us from scaling and getting higher profitability in our business. And gold and diamonds के अंदर तो मतलब अगर आप inventory manage नहीं करेंगे, that is a massive figure. Crores and crores goes into that. So this is exactly what we need. Absolutely right. So, Vinny ji, if you could get some answers from people physically present there, why is inventory management important? So basically, we are into cross-border stock and sale business. और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि we have a since the stock is overseas, so correct inventory, timely timely inventory reaching at the place is the major challenge, and replenishment is also a very major challenge sometimes, when things started going haywire, like अभी रेड सी में इशू चल रहा है, कोविड के समय वेसल्स नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज आते हैं. So there's a lot of different kinds of problems in cross-border business when you stock and sale. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. सेकंड प्रॉब्लम जो आता है डेड स्टॉक. Dead stock is a big headache because since it is a cross-border, sometimes you have to plan 5-6 months stocks in advance, Right. which definitely gives you a dead stock. Awesome. Great. So, uh, why is inventory management important? I think सबके अलग-अलग pain points हैं. That's why we have different answers. But yes, we understand why कि हाँ यार inventory management ज़रूरी तो है, but हम लोग को करना क्या है उसमें वो बहुत clearly बहुत बार नहीं पता होता है. Let's talk about that today. I would also like to add a little bit. हाँ Like जी. I'm into chemical manufacturing, and chemicals mein prices are very volatile. So when there's a dip or something, we generally end up buying a lot of stock and not knowing, maybe thinking that it is a good deal. But in the end, we are stuck with a lot of money in the inventory, and then we cannot manage that. Then there's a little cash flow issue also with that. Right. All right.
एब्सोल्युटली राइट. सो इन जनरल हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो पैसा बनेगा वो सेल में नहीं बनेगा, वो परचेज में बनेगा. तो जब जब रेट गिर रहे हैं तो भर भर के ले लो, जब रेट बढ़ रहे हैं तो स्टॉक थोड़ा सा कम कर लो, क्या पता उससे ईयर के प्रॉफिट्स निकल जाएं. राइट. So let's talk about this. Let's do an exercise. I need you to follow my instructions very, very carefully. All right. I need you all to close your eyes and just listen to me. There is nothing shown on the screen. There is nothing shown on the screen. This is a mental exercise. I need you to close your eyes and take a deep breath. Take a deep breath in and take a deep breath out. Now raise your right hand. Raise your right hand and think about the average value of inventory that you hold in your business, approximately SSG figure that you hold, approximately the average value of inventory, and I want you to hold that figure in your right hand. Now raise your left hand and think about your last year's profit, not gross profit, not net profit margin. I'm talking about absolute value of net profit. Now open up your eyes and lower your hand and tell me what is your ratio. 1:4. All right. Others? 1:2. Like the inventory was double the profit, I think. Inventory the profit 1:2, right? Others? Mine was about 5% of the profit, So 1:20. 1:20. All right. Others? 1:2. 1:2. All right. One is Others? to 1:20 as well. 1:21. 1:20. 1:20. Yeah, All right. 5%. Others? 1:2. 1:2. 1:2. 1:5. 1:5. So let me talk. Let me say, maximum businesses are having ratios between 1:2 to 1:20. And if your ratio is lower than the average, you're doing something amazing. Like if it is 1:1, or if it is 0.5 is to 1, then you're doing absolutely something amazing. If it is more than 1:20, then you genuinely need help. You need to do something drastically in your business so that you need help and you need to change things. अब इससे हमें समझ में क्या आता है कि हम एवरेज अपनी इन्वेंट्री जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, से इफ इट इज 1:5, तो 5x इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दैट वी होल्ड, और हम प्रॉफिट ले दे के सिर्फ 1x ही कमा रहे हैं. दिस मीन्स दैट जो इन्वेंट्री हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा वैल्यू की है कि हमें उस पर डेफिनेटली ध्यान देने की जरूरत है. वो हमारे प्रॉफिट का भी 5 गुना है. So we understand that how valuable the inventory is and how much it is important to deep dive into it, कि हम लोग क्या इन्वेंट्री कब रख रहे हैं, कितनी रख रहे हैं, कितने टाइम तक रख रहे हैं, so that we understand and we improve on these ratios. If your ratio is above the given range, that is 1:20, then your IMS is not working. You need to take some major steps to rectify what's going wrong in your business. So business हमें IMS बनाने के लिए business processes को भी समझना बहुत जरूरी है. Business processes को समझने की अगर बात करें, so essentially I will say that businesses are of 3 types. Number 1 is most popular, manufacturing.
Number 2 is wholesale distribution trading. And number 3 is a services business. If we broadly classify all businesses, then businesses are of these 3 types. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आता है और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स भी आता है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा. एंड सर्विसेज बिजनेस. सो अंडरस्टैंडिंग, सो एट द मोमेंट सर्विसेज बिजनेस की अगर बात हम नहीं करें, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता क्या है. अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर बात करें, so materials are purchased for manufacturing firms when they are ordered. So ordered का मतलब हुआ कि भाई जब माल की जरूरत है हम तब खरीदते हैं, उससे पहले हम खरीद के एकदम भर भर के रखते नहीं हैं. Essentially, right? So now that we've done RJ, so we can talk in terms of RJ terms as well. So we can say that in a manufacturing firm, the purchase process is somewhat a flowchart. Somewhat it is an FMS. Talking about a distribution company materials are purchased periodically, जहाँ पर हम material मंगा के अपने पास रखते हैं. This means that it is essentially more like a checklist process. It could be an FMS process also, but it is more like checklist process क्योंकि maximum major purchases जो हैं वो checklist के through periodically, कोई weekly करता है, कोई हर 3 दिन में करता है, कोई monthly करता है, but periodically हम लोग order करके अपने पास रख देते हैं. Am I right? Can I get a thumbs up? All right. So preparations before IMS. IMS majorly बनाने के लिए हमें एक अच्छा गुड अमेजिंग माइंड ब्लोइंग IMS बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? We need average daily sales. The data that we've been selling are all businesses are old. Last 6 months, last 1 year, last 2 years, last 5 years, last 10 years, जितने भी का भी डेटा आप ले सकते हैं. ये डेटा लेके अगर आप एवरेज डेली सेल्स निकालते हैं, you'll get your average daily sales SKU wise, like different SKU का अलग अलग चाहिए तो आपका रेडी हो जाएगा. लीड टाइम भी ऑल नो कि भाई हम जिस डेट पे हम लोग मटेरियल परचेज ऑर्डर देते हैं और जिस दिन हमारा सप्लायर मटेरियल हमारे घर में मटेरियल घुसा देता है, दैट इज द लीड टाइम. सेफ्टी फैक्टर इज द सब्जेक्टिव नंबर जो हम अपने सप्लायर को देते हैं या हम लोग मार्केट कंडीशंस को देते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी. ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा निकल जाता है मैक्स लेवल. अब इमेजिन करते हैं मेरे पास A to Z SKUs हैं. So I am dealing with 26 SKUs. अब मेरा मैक्स लेवल जो है वो 10 items, first 10 items, that is E to J. A to J का मेरा है अगर 4 units each. और बाकी बैलेंस जो आइटम्स हैं उनका मैक्स लेवल अगर मेरा 0 कैलकुलेट होके आता है, तो आइडियल मैक्स स्टॉक क्या हुआ? आइडियल मैक्स स्टॉक इज द सम टोटल ऑफ द मैक्स लेवल्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन योर बिजनेस. आइडियल मैक्स स्टॉक मेरे केस में आएगा 40 यूनिट्स, जहां 10 यूनिट्स का 10 अलग अलग SKUs का मेरा 4 यूनिट्स ईच आया है, एंड दैट इज एसेंशियल द आइडियल मैक्स स्टॉक. So in ideal match stock, you're talking about the entire inventory or talking about SKU? Sorry? Ideal match stock, you referring to SKU, like according to your SKU or the total inventory? Total inventory. Ideal max stock is the sum total of all the values of max stock in your business. कि भाई ये आइडियल स्टॉक है, आपको अपने बिजनेस में रखना चाहिए. इज दैट क्लियर? So yeah, you want to take an example so you understand. तो एग्जांपल जो मैंने दिया कि अगर मैं A to Z अगर मैं टोटल 26 आइटम्स के बारे में अगर मैं देख रहा हूँ, उसमें से A to J फर्स्ट 10 आइटम्स A B C D E F G H I J,
10 आइटम्स के बारे में अगर मेरा 4 यूनिट्स ईच आता है अगर मैक्स लेवल मेरे कैलकुलेशंस के थ्रू, तो मेरा टोटल आइडियल मैक्स स्टॉक हुआ 10 into 4 यूनिट्स ईच एंड दैट इज 40 यूनिट्स। अगर मैं स्टील की बात करूं तो हाँ भाई मैं 40 टन्स मेरा आइडियल मैक्स स्टॉक है, मेरे को घर में 40 टन्स आइडियली रखना चाहिए। So आप रेफर कर रहे हो मैक्स लेवल विद SKU वाइज which is 4 and ideal stock will be 40. Yes. So 40 for the 10 unit. So total sales. Total आपका टोटल घर में माल की टोटल यहाँ पे 4 है। Sum total of all max levels is ideal max stock. Ideal max level is the total of total of in existing inventory, total of max. Yeah, go ahead. Sum total of max levels of all items in your business is the ideal max stock. Ideal max stock वो है जो आइडियली आपके लेफ्ट हैंड में आना चाहिए था जब आपने वो अपने हाथ रेज किए थे। ओके, सो आइडियल मैक्स स्टॉक अगर हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद अगर पीक सीजन ऑफ सीजन हम लोग अगर वो बिहेवियर को हम लोग अपने ट्रेंड को मार्केट ट्रेंड को कंज्यूमर ट्रेंड को अगर हम लोग जज कर पाते हैं देन पीक सीजन एंड ऑफ सीजन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। नाउ what are the basics of IMS? Basics of IMS are कि भी process for inventory in and inventory out। जो inventory in and inventory out का डेटा है ये अगर हम लोग systematically अगर हम लोग IMS में feed in करना चालू कर देते हैं तो हमारा ये सेट हो गया। अब अगर हमारा बिजनेस में ऐसे SKUs में हम डील करते हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं तो उसमें FIFO हमें बहुत स्ट्रांगली यूज करना पड़ेगा। A lot of people are there who deal in medicines. A lot of people are there who deal in food items. So वहाँ पर perishability is a very very important factor. So FIFO is very very important there. There are different businesses जहाँ पर LIFO लगता है कि भी last and first out है तो that is there applicable. Now what your IMS should show is simply blocking system. Blocking system का मतलब हुआ कि भाई जो भी मेरे पास हाथ में ऑर्डर आ गए हैं पर अभी तक मैंने डिस्पैच नहीं किए हैं, वो कस्टमर ने बोला कि भाई आज 8 तारीख है, आज मेरा ऑर्डर लिख लो पर मेरे को डिलीवरी देना 11 तारीख को, तो 3 दिन के लिए वो मटेरियल मैं किसी और को तो नहीं बेच सकता। अब अगर मैं किसी और को नहीं बेच सकता सो आइडियली दैट स्टॉक शुड कम इन अनदर शीट विच इज कॉल्ड ब्लॉकिंग सिस्टम। ब्लॉकिंग सिस्टम मेरे को ये इंडिकेट करेगा कि भैया मेरे घर में स्टॉक तो है but ये blocked है for another customer which is to be dispatched later. Your IMS should also show the daily summary DB. Excuse me, just one question कि इसमें blocking system में एक बार फिर से repeat करेंगे। Blocking system is just जो goods अगर किसी और customer को जैसे मेरा payment कहीं से delay हुआ है और वो मैं अपने goods को divert कर सकता हूँ तो उसको भी तो मैं blocking system में डाल सकता हूँ। Absolutely. So blocking system हम तब भी प्रैक्टिस करते हैं जब हम लोग रेगुलर कस्टमर से लेन देन कर रहे हैं और हमारी पेमेंट कुछ ओवर ड्यू हो गई है या उसको जो हमने लिमिट सेट की है वो से वो ऊपर चले गया है एंड वी आर आस्किंग द पार्टी कि भाई आप पेमेंट कर दो और उसके बाद हम माल डिस्पैच करेंगे। करेक्ट? यस। सो जब तक वो पेमेंट नहीं आ रही 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर उसने नया ऑर्डर लिखाया है तो वही नया ऑर्डर तो उसने लिखा दिया ना, तो आइडियली तो वो डिस्पैच किसी और को नहीं कर देना चाहिए, तो IMS में उसको ब्लॉक करना चाहिए सो दैट वो आइटम ब्लॉक्ड है वो मैं किसी और को नहीं बेचूं, सो दैट जैसे ही उसकी पेमेंट आए 2-3 दिन 4 दिन में मैं उसी पार्टी को वो उसका नया ऑर्डर जो है वो मैं डिस्पैच कर पाऊं। If your IMS can cover that, it's superb, awesome. Now color coding should also be there in IMS. Color coding तो obviously आपको सबको पता ही है, अगर 66% से 100% तक है तो आपको ग्रीन दिखाना चाहिए, अगर 33% से 66% तक है मैक्स लेवल का तो आपको येलो दिखाना चाहिए, अगर 0% से 33% तक है तो आपको रेड दिखाना चाहिए।
100% से ऊपर अगर है तो आपको पर्पल दिखाना चाहिए, 0% हुआ है मैक्स लेवल का तो आइडियली आपको ब्लैक दिखाना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट 5 कलर्स जो आपको इंडिकेट करने चाहिए कि भाई क्या स्टेटस है और क्या हमारा स्टॉक है और आइडियली क्या होना चाहिए। ये सब चीज रेडी हो जाती हैं तो आपके पास तो आपका बन जाएगा IMS रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। अभी तक किसी को भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्लैरिफिकेशन? This process for inventory in and out, you said to consider, but does it come in the IMS or is it separate? IMS में आपका अगर इन्वेंट्री इन एंड इन्वेंट्री आउट अगर रेगुलरली फीड इन नहीं हो रहा है तो IMS तो नहीं बन पाएगा। It has to be a part of the IMS. That's not in our traditional system. You're saying we have to include it. Yes. But क्या हम लोग यही IMS समझने के लिए आए थे? I don't think so. You wanna explain daily summary? Sorry? Daily summary that you are mentioning in the slide. डेली समरी, यस। सो IMS जो है, जो आई थिंक सानिध्य सर ने भी आप लोग को सबको दिया होगा, उसमें एक समरी बोल के एक टैब होगा नीचे। समरी इज द एंड ऑफ द डे स्टॉक। एंड ऑफ द डे स्टॉक में आपके पास एंड ऑफ द डे क्या मटेरियल है, कितना मटेरियल है, क्या कलर कोड का मटेरियल है एंड उसकी मतलब वो कितना मटेरियल हमारे घर में एट द एंड ऑफ द डे है। आइडियली एंड ऑफ द डे की डेली समरी DB डेटाबेस वो रेगुलरली जनरेट हो जाना चाहिए। That is what I meant by daily summary DB. I think we have this in our IMS sheet. It's called the average closing stock. जो once you run the formula. Yeah. Yes. So ये तो सब basics हुआ. But I don't think so that you all were here to understand what that simple IMS was. And you want to understand what exactly this is. All right. So, what is exactly the king of IMS? The king of all IMSs. So, king of all IMSs is here, where it shows that. So, ये concept को समझाने के लिए मैं I want to use the analogy of a universe. We have यूनिवर्स के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के हमारे पास कुछ मून्स हैं। सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड देयर आर बेसिकली 5 प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स ऑफ किंग ऑफ IMS एंड वो 5 प्लैनेट्स के थ्रू हम IMS समझेंगे कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। सो नंबर 1, वी शुड हैव अ IMS मास्टर। IMS master is like a database जहाँ पर कोई भी आइटम SKU आप ऐड कर सकते हो या अपने सिस्टम से निकाल सकते हो। कोई भी अब जैसे क्या होता है कि हम लोग यूजुअली 500, 1000, 1500, 5000, 10,000 SKU से हम लोग डील कर रहे होते हैं एंड ऑन अ रेगुलर इंटरवल नए आइटम्स भी आते रहते हैं। तो हाउ डू यू ऐड द न्यू SKUs in your system? How do you remove the SKUs from your system? That is done through IMS master. IMS master एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर आप SKU डालोगे with its SKU कोड तो वो सारे सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा वो SKU एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर IMS मास्टर से आपने वो आइटम को हटा दिया या वो SKU को हटा दिया तो फिर वो सारे सिस्टम से हट जाएगा और उस SKU के बारे में बात नहीं होगी। It will be very easy for you to manage your different SKUs if you have an IMS master. That is planet number 1. Then comes the inventory management system. That is our main planet. That is the IMS जिसकी हमने पहले बात की। अब क्या है, IMS जो planet है उससे definitely एक connected moon है and that moon is a sales sales entry system.
तो सेल्स एंट्री सिस्टम हमारा एकदम प्रोमिनेंटली वैलिड होना चाहिए। सेल्स एंट्री सिस्टम के थ्रू हमारे स्टॉक घट सकते हैं, सेल्स एंट्री सिस्टम के थ्रू हमारा इन्वेंट्री जो है वो घट जाता है, एंड हम हमारा जो IMS है वो एग्जैक्ट सही लॉजिकल डेटाबेस हमें रिफ्लेक्ट करेगा। सो दैट इज द स्मॉल मून जो IMS से स्टॉक घटाता रहता है। अब IMS से कनेक्टेड क्या है? IMS से कनेक्टेड है लाइव शीट। लाइव स्टॉक शीट, लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक इज अ डायनामिक शीट। वो डायनामिक शीट की जरूरत क्यों है हमें? वो डायनामिक शीट की जरूरत इसीलिए है कि हमारे पास, सबके पास, किसी के पास भी यहाँ सेल्स टीम अगर है तो आई एम श्योर वो एक स्पेसिफिक एक जन की नहीं होगी। We will have 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 people who will be representing the company and who will be selling the stock. So बहुत बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा क्या कि भाई अब मेरे साथ क्या हुआ मेरी कंपनी में, there is a guy called Surojit and there is a salesman called राजेश। अब बहुत बार होता है कि राजेश और सुरजीत का क्योंकि एरिया बहुत पास पास है तो उनके कस्टमर्स एक ही टाइप के आइटम्स ऑर्डर करते हैं। अब सुरजीत ने क्या किया? सुरजीत ने 5th of March को एक ऑर्डर ले लिया, दैट इज 40 MB MS पाइप, 2 mm का मटेरियल, एंड उसने 2 टन का ऑर्डर ले लिया। अब दिक्कत हुई कि 5 तारीख को वो ऑर्डर तो आ गया, वो मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ था, 2 दिन बाद डिस्पैच होने का था। अब वो राजेश ने भी सेम आइटम का ऑर्डर ले लिया। अब राजेश ने भी सेम आइटम का ऑर्डर ले लिया तो वो बोलता नहीं मेरा कस्टमर तो बड़ा है भाई, सर देखिए इसको पहले भेजिए, इससे बात करिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने सुरजीत को पटाया, सुरजीत ने अपने कस्टमर को पटाया कि सर ये आइटम नहीं है, ये आइटम छोड़ दीजिए, बाद में ले लीजिएगा। फिर सुरजीत ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया, फिर राजेश ने अपना ऑर्डर इन किया, और फिर हम लोग का माल डिस्पैच हुआ। सो ये सब कंफ्यूजन्स तब होती हैं जब लाइव स्टॉक शीट हमारे पास नहीं होती है या वो नहीं फंक्शन कर रही होती है। दिस हैपेंड बिकॉज उस स्पेसिफिक डे पे लाइव स्टॉक शीट में कुछ एरर आया हुआ था एंड वहां पर दिक्कत आई। सो ये सब इश्यूज को हैंडल करने के लिए लाइव स्टॉक इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। दिस शुड बी अ डायनामिक शीट। वो डायनामिक शीट इसीलिए है क्योंकि उसमें एब्सोल्युटली लाइव डेटा अपडेट होता रहना चाहिए। ये लाइव स्टॉक शीट को सुपर यूटिलाइजेशन तब होता है जब ये लाइव स्टॉक शीट हम अपने बिजनेस की हम अपने कस्टमर्स को एक्सेस दे देते हैं। हम अपने कस्टमर्स को क्लियरली ये कन्वे कर देते हैं कि सर हमारी लाइव स्टॉक शीट आप देख लो, हमारा व्हाट्सएप पे भी सारा डेटा अवेलेबल है, व्हाट्सएप से आप मेरे लाइव स्टॉक शीट से बात कर लो, कौन सा आपको मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, वो लाइव स्टॉक शीट आपके साथ इंटरेक्ट करके बता देंगे। आई होप बाय द एंड ऑफ BMP you are able to construct this sheet. लाइव स्टॉक शीट का एक छोटा सा मून भी है which shows your excess stock. अब excess stock हमें पता है क्या होता है? Excess stock is any stock that is showing purple in your IMS. पर्पल का मतलब हुआ कि वो जितना मैक्स लेवल है, मैक्स लेवल समझो अगर कोई स्टॉक का 4 यूनिट्स है और हमारे पास 6 यूनिट रखे हुए हैं उस स्टॉक के, तो वो 2 यूनिट्स जो है वो पर्पल स्टॉक में दिखाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एक्सेस स्टॉक का पार्ट होना चाहिए। एक्सेस स्टॉक में अगर क्लियरली रहेगा कि हाँ भाई 2 यूनिट जो है वो हमारा एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है और 4 यूनिट्स जो है वो तो नॉर्मल लाइव स्टॉक में है, देन इट इज एन एब्सोल्युटली राइट थिंग टू डिस्प्ले। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट व्हिच इज द PO प्लानिंग शीट। अब भाई PO प्लानिंग शीट होती है, PO प्लानिंग शीट क्या है? PO प्लानिंग शीट, अब मेरी कंपनी में BMP से पहले एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 3-3, 4-4 घंटे बिताते थे जो परचेज मैनेजर है, और वो परचेज मैनेजर बैठ के देखता था कि भाई क्या हमारे पास स्टॉक है, कितना हमारे पास माल है, क्या हमारे को ऑर्डर करना है, फिर और कितना चाहिए, फिर और प्रेडिक्ट करता था आगे की सेल्स, उसके हिसाब से वो ऑर्डर करता था। अब भाई ये सब में इतना टाइम लगता था, तो अब हमारे पास है PO प्लानिंग शीट। PO प्लानिंग शीट की वजह से विद जस्ट 1 क्लिक we are able to determine exactly हमें ऑर्डर करना क्या है। It is an absolutely automated sheet, that is also a dynamic sheet जो उस मोमेंट का ऑर्डर बता देती है कि भाई अभी as of 8th March 2024 6:45 बजे सुबह के मेरे को क्या आइटम्स ऑर्डर करने की जरूरत है, वो एग्जैक्टली वहाँ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब PO प्लानिंग शीट के हमारे पास लेवल्स होते हैं। SSG लेवल पे
अगर हम पीओ प्लानिंग शीट बना रहे हैं तो हमारी लेवल 1 शीट होनी चाहिए मैक्स लेवल्स माइनस करंट स्टॉक इज इक्वल टू ऑर्डर टू बी डन. सिंपल, मैक्स लेवल्स माइनस करंट स्टॉक इज इक्वल टू ऑर्डर टू बी डन. ये होना चाहिए लेवल 1 ऑफ पीओ प्लानिंग शीट, एंड दिस इज हाउ यू शुड लॉन्च योर शीट व्हेनेवर यू मेक इट. बट क्या हम इससे खुश हैं? नहीं, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. सो लेवल 2 क्या हुआ? लेवल 2 हुआ पीओ प्लानिंग मैक्स लेवल्स माइनस करंट स्टॉक माइनस ब्लॉक स्टॉक. ब्लॉक स्टॉक वो है क्योंकि ब्लॉक तो वो तो ऑलरेडी हो चुका, वो तो डिस्पैच हो ही जाएगा नेक्स्ट 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो वो तो मटेरियल मेरे को ऑर्डर कर ही लेना चाहिए. सो ब्लॉक स्टॉक को भी कंसिडर करके फिर हमें पीओ की प्लानिंग करनी चाहिए. लेवल 3 क्या हुआ? लेवल 3 हुआ मैक्स लेवल्स माइनस करंट स्टॉक माइनस ब्लॉक स्टॉक प्लस प्रीवियसली ऑर्डर्ड मटेरियल्स. प्रीवियसली ऑर्डर्ड मटेरियल्स को अगर हम कंसिडर कर लेंगे, भाई उसी वेंडर से उसी आदमी से हमने ऑलरेडी वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लास्ट वीक, क्योंकि पीओ प्लानिंग हम एब्सोल्युटली फ्रेश और जिंदगी में पहली बार तो प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं. हमने तो पहले भी मैनुअल तरीके से की हुई है या जैसे भी तरीके से की हुई है, हमने तो पहले भी ऑर्डर्स दिए हैं, तो वो ऑर्डर्स को भी तो माइनस कर लेना चाहिए ना कि ऑलरेडी हमने ऑर्डर क्या कर दिया है. सो दिस इज हाउ यू मेक अ लेवल 3 ऑफ पीओ प्लानिंग. Ankur ji, level 3 you mean material in transit? Yes. Okay. Either ordered material जो हमारे पास अभी आया नहीं है और material in transit, both. उसको हम कंसिडर कर लेंगे तो हम अपनी पीओ प्लानिंग शीट बहुत अमेजिंग बना सकते हैं. अभी पीओ प्लानिंग शीट वाला प्लैनेट अगर कवर हो जाता है तो आता है परचेज ऑर्डर. अब परचेज ऑर्डर जो है पीओ प्लानिंग से परचेज ऑर्डर एकदम क्लियरली ऑटोमेटेड अपने तरीके से हो जाना चाहिए, प्लेस हो जाना चाहिए. पीओ प्लानिंग शीट का अब बहुत कंपनीज में, अब जैसे हमने बात की कि भाई हमारा किसी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हमारा किसी का ट्रेडिंग बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, तो डिपेंड्स ऑन योर थिंग कि भाई वो आप एफएमएस की तरह चलाना चाहते हो कि वो आप चेकलिस्ट की तरह चलाना चाहते हो. What kind of process is there in your company that completely depends on you and your business, but उसको purchase का process तो भाई होना ही चाहिए. That is the whole point. Coming to the next planet, that is vendor management system. अब vendor management system सुन के भाई लगेगा ये तो बहुत भारी भरकम चीज है भाई, ये होता क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? Let me help you make vendor management system like this. वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है? वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है, वो डेटाबेस है जहां पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने जब अपने सप्लायर्स को ऑर्डर दिया और जब उन्होंने मेरा मटेरियल सप्लाई किया, ये होता है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम. सो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं और ऑर्डर वो फुलफिल कर दे रहा है. सो दिस इज मटेरियल फिजिकल मटेरियल का इन तो तब हो रहा है जब वो मटेरियल फुलफिल हो जा रहा है. सो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली अगर आप सोचें तो ये आईएमएस का उल्टा हुआ ना. जब मटेरियल आ रहा है तब वो ऑर्डर्स से नेगेट हो जा रहा है, वो ऑर्डर्स से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है. Am I being absolutely clear? Yes. If I am, please give me a thumbs up. So ये exactly reverse IMS ही तो है. IMS शीट में बस वो इन्वेंट्री इन इन्वेंट्री आउट की जगह वो ऑर्डर इन ऑर्डर आउट कर दो तो लग गया आपका वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम. अब एक वेंडर हो चाहे 10 वेंडर हो चाहे 50 वेंडर हो, आप VMS के थ्रू आप इजीली उसका डेटाबेस रख सकते हो कि भाई कितने कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं. जो ऑर्डर्स पेंडिंग है वो उसके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. जब वो ऑर्डर फुलफिल कर दे रहा है तो वो हट जाना चाहिए वहां से. वो मेरा पेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिसॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि मटेरियल इन हो गया.
सो ये हुआ हमारा फिफ्थ प्लैनेट से कनेक्टेड एक छोटा सा मून विच इज कॉल्ड परचेज एंट्री सिस्टम। अब भाई जब वीएमएस से हमें पता चल जा रहा है कि मटेरियल तो आ गया, अब जब मटेरियल आ गया तो वो परचेज एंट्री के थ्रू चले जाना चाहिए। परचेज एंट्री में अगर आ गया तो परचेज एंट्री से हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो जाना चाहिए और वीएमएस से वो ऑर्डर घट जाना चाहिए। सो ये 5 चीजें अगर आप लगा लेते हैं, 5 प्लैनेट्स अगर आप बना लेते हैं और वो 5 प्लैनेट्स के छोटे छोटे मून्स भी अपने बना लेते हैं, तो आपका रेडी हो जाता है किंग ऑफ आईएमएस। इंटरेस्टिंग। बट अब क्या है, ये किंग ऑफ आईएमएस मैंने बना तो दिया, ये किंग ऑफ आईएमएस मैंने अपने बिजनेस में भी लगा दिया, ये किंग ऑफ आईएमएस मैंने हेल्प किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बिजनेसेस में लगाने में। अब भाई हम लोग जब कोई भी बिजनेस में लगाते हैं, नॉट जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई डिड इट प्रोफेशनली आल्सो, आई प्लेस्ड द किंग ऑफ आईएमएस इन अ लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस। एंड हमने ये नोटिस किया कि भाई जब पहली बार लगाते हैं तो ये मॉडल जो है ना कुछ ऐसा नहीं दिखता ये मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। सो किस किस के बिजनेस में ये देखा है कि भाई ये मॉडल ऐसा दिख रहा है? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। So, would you like to share anything? अभी एग्जैक्टली यही हालत है इधर और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम सेक्टर को स्टॉक को कैसे कम करेंगे। All right. और मतलब देख के बहुत you know it is little worrisome right now. All right. So Deepti ji, I'll tell you something. Any mistake or any problem that you have in life, Yeah. तो प्रॉब्लम के 2 स्टेजेस होते हैं। वो प्रॉब्लम नंबर 1 जब वो रियलाइज होती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, Right. द रियलाइजेशन ऑफ इट, द एक्सेप्टेंस ऑफ इट कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे पास है। Correct. एंड सेकंड स्टेज इज यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो जब फर्स्ट स्टेज होती है, दिस मींस दैट 50% ऑफ द जॉब इज डन। Yeah. ये रियलाइज होना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर ये आपको रियलाइज हो गया, दैट इज सुपर्ब, दैट इज वेरी नाइस। ये रियलाइजेशन ही नहीं होती है बिजनेसेस को और वो सालों तक रन करते रहते हैं, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। No, but we are into automobile. हमारे vehicular stock में तो what science has taught, it has worked wonders. We were carrying too much stock and it come down to 1 month. But part is amazing. A big high five to you that you have done that, and it is amazing. Thank you. Not me, my bhabhi has done that. Sorry? I'm saying it's not me who's done that. It's my bhabhi who's done it. So big thanks to her. फैमिली में कोई भी करे, पॉइंट इज आपके बिजनेस में हो रहा है, दैट्स द गुड। शिवम जी, would you like to share anything? Hello. Hi, good morning. Good Hi, morning. I've just joined a while back, so I'm just looking at it right now. All right. So you can lower your hand. So, Ankur, can I say something out here? Yes, please do. So, Ankur, I have a very different kind of a problem facing in the factory. We are into manufacturing of copper. I met you also during the session. Yes. And we have a continuous casting system wherein we need copper every time so that the furnace keeps running. So that produces the raw material, which is again हम लोग की जो और मशीन है उसको फीड करती है। वहां पर रॉ मटेरियल काफी एक्यूमुलेशन होते जाता है क्योंकि हमको फर्नेस को मेटल देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज फर्नेस होल्ड में चल जाता है हमारा। अब उसके बाद वाले प्रोसेसर है वहां पर कहीं ना कहीं जाके हमारा ब्लॉकेज होता है, तो रॉ मटेरियल स्टेज में ही हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा रहता है बाद में, एंड वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दैट क्योंकि हमको वो फर्नेस चलाना ही पड़ेगा और वो माल मतलब वो मेरे पास कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा मेरे को उसका, कोई बात तो मतलब बॉटल नेक हो गया मेरे एक तरफ से वहां पर। ये टॉपिक बड़ा है, ये टॉपिक में और सबको नहीं बिठाते, अपने 1-to-1 बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है।
So coming back to the presentation, we have worked with multiple businesses with the same model of King of IMS. एंड एक्सेस स्टॉक यूजुअली जो आइडियली मून रहता है वो हमें रियलाइज होता है कि भैया ये तो सन बन गया है, ये मून नहीं है, ये तो सन बन गया है, ये इतना बड़ा है कि दिस इज नॉट जस्ट अ मून, दिस इज नॉट जस्ट अ प्लैनेट, दिस इज अ होल ब्लडी सन. एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. आई होप ये स्टेज पे अगर आप आए हो तो आई नो द फ्यूचर इज ब्राइट, द ओनली वे टू गो इज अप. सो ये रियलाइज भी हो जाए तो पता भी चल जाए. सो बेस्ट थिंग इज कि आप इस पे काम करिए एंड इसको इम्प्रूव करिए एंड इसको सन की जगह बनाइए प्लैनेट और प्लैनेट की जगह बनाइए मून, ताकि एक्चुअल में मून ही रहे. सो एक्शनेबल हमारा आइडियली किंग ऑफ आईएमएस मॉडल तब सक्सेसफुल होगा जब हमारे एक्शनेबल्स इन द होल IMS मॉडल. अब IMS मॉडल मैंने इतना बड़ा दिखा तो दिया था, बट वो IMS मॉडल सक्सेसफुल कैसे होगा? IMS मॉडल सक्सेसफुल तब होगा जब हमारा एक्शनेबल्स इन द IMS आर ओनली टू थिंग्स. नंबर 1 इज परचेज एंट्री सिस्टम, नंबर 2 इज सेल्स एंट्री सिस्टम. परचेज एंट्री सिस्टम और सेल्स एंट्री सिस्टम ही चलना चाहिए जहां पर आपके स्टाफ बैठ के काम करेंगे और उस पर एक्चुअल में एंट्री करेंगे और एक्चुअल में डेटा फीड करेंगे कि भाई ये हमने परचेज कर लिया और ये भैया आज सेल हो गया. ये दो एक्शनेबल्स के अलावा और कोई एक्शनेबल्स नहीं होने चाहिए आपके पूरे मॉडल ऑफ IMS में. ऑल एंड एवरीथिंग, द होल किंग ऑफ IMS मॉडल शुड रन इन द बैकग्राउंड आइडियली. दैट इज द आइडियल स्टेट. तब हुआ आपका वर्ल्ड क्लास IMS. How about work in progress? Okay. तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो बहुत मुश्किल है PMS के बिना रन करना. अगर वो PMS का पार्ट है एंड दैट्स फाइन, बट आइडियली IMS का पार्ट नहीं होना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस. IMS आप अपने रॉ मटेरियल के लिए अलग चला सकते हैं, IMS आप अपने फिनिश गुड्स के लिए अलग चला सकते हैं, बट वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि जनरेट भी हुआ है प्रोडक्शन की वजह से और वो कंज्यूम ही हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर, तो आइडियली वर्क इन प्रोग्रेस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ IMS. It should be a part of. So let's summarize what we've learned today. What have we learned? We have learned about 5 planets. Planet number 1. Planet number 1 is IMS Master. IMS Master में है नंबर 1 विच इज हम सारे आइटम्स लिखते हैं जहां हमारे आइटम्स इजीली ऐड कर सकें, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकें. कोई भी नया SKU आता है तो वहां ऐड करने से सारे सेक्शंस में ऐड हो जाना चाहिए. प्लैनेट नंबर 2 विच इज द एक्चुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम IMS. IMS का प्लैनेट जो है उसका एक छोटा सा मून है विच इज कॉल्ड सेल्स एंट्री सिस्टम. सेल्स एंट्री सिस्टम के थ्रू जितने भी मटेरियल जो हमारे बिक जा रहे हैं वो उसमें फीड इन होना चाहिए, जिसकी वजह से IMS में स्टॉक घट जाना चाहिए. प्लैनेट नंबर 3 विच इज द लाइव स्टॉक शीट, डायनामिक शीट. लाइव स्टॉक शीट आपके सेल्स टीम को हेल्प करेगी ताकि आप बहुत स्मूथली अपनी सेल्स रन कर सकें, अपने कस्टमर्स के पास कंफ्यूजन ना पहुंचने दें. उस लाइव स्टॉक शीट प्लैनेट का एक छोटा सा मून है विच इज कॉल्ड एक्सेस स्टॉक. आइडियली वो मून ही होना चाहिए, वो सन नहीं होना चाहिए. उसके अलावा वी हैव द 4th planet which is the PO planning sheet. PO planning sheet should help you in building your in doing your purchase process. Purchase process ideally time taking नहीं होना चाहिए, it should be done in one click. PO planning sheet जब आप लॉन्च करें तो उसका level 1 एकदम सिंपल लॉन्च करें, level 2, level 3, level 4 बाद में डेवलप हो जाएगा ग्रेजुअली. उसका एक छोटा सा मून है विच इज कॉल्ड द परचेज प्रोसेस को जाना चाहिए VMS में. फिफ्थ प्लैनेट जो है वो है VMS. VMS के थ्रू आप अपने सारे वेंडर्स का सारा डेटा मैनेज कर सकते हैं, हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हमारे सप्लायर्स के पास चल रहे हैं वो मैनेज कर सकते हैं. एंड उसका छोटा सा मून विच इज कॉल्ड द परचेज एंट्री सिस्टम. परचेज एंट्री सिस्टम के थ्रू हमारे IMS में डेटा ऐड हो जाना चाहिए, स्टॉक ऐड हो जाना चाहिए. सो इफ यू अंडरस्टैंड, आज हमने सीखा क्या है? आज हमने सीखा है ये
The king of IMS is actually 5 planets. The king of IMS is 5 planets. A summary, this is the universe. I call it the Kedia universe. I am Ankur Kedia, and this is my whole universe. And this is what everything about me is. So let me introduce myself properly. Hi, I'm Ankur Kedia. My company's name is Kedia Tubes. We are distribution experts who specialize in steel pipes. Since 2003, we have helped more than 2,800 customers in 10 states to generate a revenue of over 1,200 crores. We have supplied more than 88,000 tons of steel, spread over 2,500 SKUs in 9 different categories. At any given point of time, we have a ready-to-dispatch inventory of over 1,000 tons stored in our 4 warehouses. Uncle ji, just a request, can you go back to the previous slide? No, the one. Hanji. No, the one before this. Yeah. Ankur ji, we are also into a steel fabrication units. We have a steel fabrication units across India. One thing, sir, आपका जो IMS side, it is very useful for us in maintaining our steel inventories. But इसका जो हमको एक जगह चैलेंज आ रहा है, जब हम अपने फिनिश्ड गुड का IMS कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड के IMS में जब हमारा स्ट्रक्चर्स असेंबल्ड हो जाता है, हमने उसको PMS से लिंक किया कर रहे हैं, पर उसका क्या है, हर स्ट्रक्चर के डिजाइन्स अलग हो रहे हैं और हर स्ट्रक्चर्स के वो डिजाइन अलग हो रहे हैं, तो वो ऑर्डर टू मेक IMS में जा रहा है, तो उसके डिस्पैचेस को थोड़ा मेंटेन करने में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है. क्या मैं आपसे 1-to-1 डिस्कस कर सकता हूँ इस टॉपिक पे? Yes, we'll come to that. Yes, we'll discuss. We can discuss. We'll definitely sit down and have a 1-to-1 conversation so that I can help you out. Yes, क्योंकि मेरा PMS भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, बट ऑर्डर टू मेक में वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर्स के स्पेसिफिक डिजाइन्स होते हैं फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में. यू मे बी सप्लाइंग टू मेनी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री. कोई दिक्कत नहीं, अपने बैठ जाते हैं, we'll discuss. No issues. Thank you, Uncle. Thank you very much. All right. So, Hanji. Sorry. So I'm Gaurav. I was coordinating with you. So we have a coordinator with this. Is it possible after the class can you share this presentation? We'll talk. Let's talk. We'll go. Okay. So मेरे लिए major milestones क्या हैं? मेरे लिए major milestones हैं that I implemented IMS in my business. Because of implementing proper IMS, I was able to lower my stock by 37.25% in one single year. I increased my sales by implementing IMS and doing nothing more by 32%. And this resulted in absolutely doubling my profits the same year. Wow. Just because of implementing a proper IMS, a proper full-fledged ढंग से proper simple IMS, I doubled my profits. अब बिजनेस में ये तो हो गया, बढ़िया बात है. व्हाट्स नेक्स्ट? सो व्हाट्स नेक्स्ट में हमने किया, I started another company and called Kedia Growth Services, and now we help other businesses achieve similar results. How do we help other businesses? We help other businesses by proper implementation. How do we help the implementation? We do complete implementation, not for everyone, but we do this only for a selected few companies where we feel that we will be able to add value to them. We have made these sheets so that it's very easy. It is like a plug and play model where it becomes very easy to implement the same model in the business. After implementing it, this is the kind of sample dashboard that we help companies to create. This helps them handle all their inventory issues at just one place. But I'm honestly not here to sell you any course or sell you anything. My only aim here is to so that you can build your own IPs. I'm only
going to talk about the model of MS, the concept of MS. तन्मय जी आपका वो म्यूट कर दीजिए ना. I'm so sorry. Plus, I am here honestly because of the requests done by Pradeep Madhugadia ji from Calcutta and Gaurav Agarwal ji from Bombay. Gaurav ji, thank you. Thank you so much, sir. That was very insightful. Thank you so much, sir. But आप लोग ने IMS के बारे में इतना कुछ सीखा, मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए. Why is inventory management important? I think it's not only important; it's very important to manage your inventory because there's the profit lies there. But why is it important? वो IMS लगाने का हमारा absolute clear cut objective क्या होना चाहिए? So to reduce the inventory levels. Cash flows, better cash flows. Double your profit, right? अभिषेक जी के लिए है cash flow. Rohan, what were you saying? I love the idea of doubling my profits without having to increase my sales. Awesome. On-time delivery to minimize the inventory. Awesome. राकेश जी, minimize the inventory. राकेश जी अपने इस बारे में बात करेंगे definitely. संजय जैन जी, आप कुछ बोल रहे थे? Well, everybody has answered everything. The whole thing is what I understand. Being a business and entrepreneur, we are into so many things. But one IMS makes everything automation and whatever everybody is saying is the output comes after implementing it. But हम लोग को पहले मालूम ही नहीं था ऐसे कुछ होता है. That was the whole thing. So, is what you want to say. मालूम है कि ये करने से पूरा ऑटोमेशन अच्छा होना है. Great. Ankur, for me, my inventory is eating away all my profit. All right, great. Sir, Ankur ji, can I share? हाँ जी, please. Sir, in our business, in jewelry business now, this is the only thing which eats everything. हमारा सब खर्चा कम होता है, यही खर्चा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और उसका ब्याज वो मार लेता है हमारे सब प्रॉफिट को. रोहन भाई, just rectify me if I'm right or wrong. And this is the only thing which can help us. ये हम ब्रह्मास्त्र है, जड़न बूटी है, जो बोलना है बोल सकते हैं सर. Awesome. Great. I really hope I've been able to add value, but let me do this one thing. हमने किसी ने भी सही आंसर इसका नहीं दिया है. Why is inventory management important and why do we need to implement IMS in our businesses and what exactly is the reason why we implement IMS in our business, and let me share you why. This is the IMS dashboard और IMS का implement करने का whole process and whole result ही इसी से आएगा. ये IMS dashboard हमारे पास 100% होना चाहिए. ये IMS dashboard अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास IMS नहीं है. ये IMS dashboard is the whole and sole reason why IMS is important. IMS में clearly हमें दो चीजें होनी चाहिए. Number 1 is ideal max stock. Number 2 is excess stock. और इस पे हमारे पास clearly दो ही numbers होने चाहिए कि ideal max stock हमारे पास कितना planned है and ideal max stock हमारे पास कितना actual है. अभी I think किसी ने बोला जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू मैं स्टॉक कम करूंगा. There was some gentleman. Yes, Rakesh. हाँ, राकेश जी, आपने बोला कि मैं स्टॉक कम करूंगा. So let me break this myth कि IMS के थ्रू सिर्फ कम करना ही एम नहीं है. The aim is to have the right stock. Yes, optimum stock. एक्सेस स्टॉक को 100% आप कम करिए. एक्सेस स्टॉक जो है, अब हमारे सबके बिजनेसेस अलग हैं. कोई स्टील से है, कोई ज्वेलरी से है, कोई गारमेंट्स में है, कोई फूड में है, कोई प्लास्टिक्स में है, सब अलग अलग बिजनेसेस से हैं. पर आप मेरे को बताइए, ये चारों डब्बों में ये चार यहाँ वैल्यूज हैं. इसमें आइडियल स्टॉक रिपोर्ट में जो प्लान्ड फिगर है वो 100% सारे बिजनेसेस का सेम होना चाहिए. यस और नो? Yes, theoretically, yes. Yes.
Yes. सबको सारे बिजनेसेस का सेम फिगर होना चाहिए भाई. एक्सेस स्टॉक तो प्लान्ड वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए. एक्सेस तो एक्सेस स्टॉक हमारे सबके बिजनेसेस में प्लान्ड वैल्यू एब्सोल्युटली जीरो होनी चाहिए, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ आईएमएस. यहाँ पर क्लियरली होना चाहिए. प्लस द सेकंड थिंग दैट आईएमएस सेज इज आइडल मैक्स स्टॉक क्लियरली होना चाहिए. आइडल मैक्स स्टॉक अगर हमारे पास यही वाला जो प्लान्ड स्टॉक है वो नहीं है तो हम अपनी सेल्स लूज कर रहे हैं. अब आई वुड लाइक टू नो योर रेशियोज ऑफ आइडल मैक्स स्टॉक. जहाँ पर जो आइडल मैक्स स्टॉक हमने इनिशियल में हमने एक्सरसाइज की थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज, उससे हमने आइडल मैक्स स्टॉक का प्लान्ड एंड एक्चुअल वैल्यू निकाला था. आइडली जो आइडल मैक्स स्टॉक की प्लान्ड वैल्यू है वो हमारे राइट हैंड में होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं. I don't know if anybody has these figures ready. If any one of you have these figures ready, please raise your hand and please take a gift from me. अगर ये figures किसी के भी ready हैं, तो मैं अभी के अभी उसको इस इंसान को गिफ्ट देने को तैयार हूँ. कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए. So what's the question? Sorry. फिगर रेडी नहीं है. फिगर्स रेडी नहीं है तो ये आईएमएस डैशबोर्ड रेडी नहीं है. फिगर्स रेडी होने चाहिए. अगर फिगर्स रेडी नहीं है then I don't think your IMS is ready yet. I will ask the audience that we all are here in different industries and हमारा सबका planned figure तो सबका same होना चाहिए. Please get this IMS dashboard ready in your business. This is an absolute necessity. This is absolutely necessary. IMS का whole main agenda ही यही है. So I'll come to my next point. So a great author once said that without action, knowledge is often meaningless. नहीं होगा तो नॉलेज करके कोई फायदा नहीं है. ये आईएमएस के डिस्कशन में हम लोग जो लास्ट 1 घंटे से बैठे हुए हैं इसका भी कोई फायदा नहीं होगा. कुछ नहीं होगा अगर आज एक्शन नहीं होगा. तो ये आईएमएस डैशबोर्ड सबका रेडी होना ही चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल. ऐसी कोई मैंने हाई फंडा चीज बात नहीं की है. आई हैव टॉक्ड अबाउट बेसिक्स. ऑल ऑफ यू हैव डन आरजे. यू आर ऑल केपेबल ऑफ बिल्डिंग दिस डैशबोर्ड. So the only thing to do right now is action, action, action. If you have any doubts regarding your specific IMS, you want my help, let's do a 30-minute one-to-one session. I will help you. You can talk to me about your IMS and we'll discuss. Just scan this and we can have a one-to-one conversation. So Ankur, I had a question. How do you connected your purchase order system, your sales system with the IMS? Do you think you can just Sure, we can sit and discuss. No issues. I'll help you out. No, कोई दिक्कत नहीं है. ताकि आप जो बोलते हो ना पूरा वो आपका यूनिवर्स है. So this gets completed only when your sales system is all connected with the IMS. Also, part of it, like for example, in transit IMS speak about that. So does that entire universe also consider in transit part? Yes, live stock में वो reflect करना चाहिए. Yes. अच्छा. वो जैसे आपने लेवल 1 2 3 वो पार्ट की बात. यस, ये पीओ प्लानिंग शीट में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो भी मटेरियल इन ट्रांजिट है वो हमारा ऑलरेडी परचेज्ड है, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. So in layman terms, what I understand is IMS technically gives you an overview about your stock. But ideally, if you have to control the entire inventory management system, it cannot effectively function if our purchase system, our sales system and IMS are not interlinked with each other. Correct, absolutely.
Okay. So have you developed a template for purchase system, sales system, like how technically you have like that for IMS? You think you can just मैं तो इसमें बहुत डीप डाइव कर चुका हूँ मैं तो ये बहुत प्रोमिनेंटली करता हूँ. I have these templates. so these are all from base level then you created. Correct. So हम थोड़ा सा देख सकते हैं मतलब if possible. Sure. Let's have a one-to-one session and that I'll help you out. Sure. Sure, one. ठीक है. I'll basically book the session and then probably I can just or in the meanwhile if you have some probably some people around with us they just want to have a other possible. No issues. I'm honestly here on the request of Pradeep ji and Gaurav ji. I am not selling any course here. I'm absolutely here to add value to you. And let me also clarify this. This is absolutely free, no charge. We are here to help others. Let's sit and have a discussion. Sure. And let me help you in your individual IMSs. Let's have a 30-minute conversation so that I can help you out. Sure, sounds good. So, a big thank you from my side for giving me an opportunity to share the model of King of IMS. Some people, I call it the Kidia universe because it has 5 planets. And I hope it was of some value to you. Thank you so much. Thank you, Ankuji. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so boss. much, Ankuji. Thank you. Thank you so much. अंकुर जी ये जो form, the QR code form you've shared, it's not accepting the mobile number. It's saying enter a valid 10 Yeah, digit. same issue with me as well, Ankur. Okay. I think वो Indian number accept करेगा. नहीं, Indian number ही लिख रहा हूँ मैं. International number तो is more. Indian number भी Yeah, accept it's a 10-digit Indian number, but वो error आ रहा है कि please fill a valid number. कुछ तो validation में गड़बड़ है वहाँ. No issues. मैं उसको फॉर्म को करेक्ट करके मैं QR कोड जो है मैं वापस भेज दूंगा. Okay. I'll send it to Gaurav ji so that he can put it in the group. Perfect. Ankur ji would love to connect with you on the steel pipes front. Yes. हाँ जी बताइए ना please. I'll use your QR code and I'll get in touch with you. You can chat. Sure. Awesome. Thank you so much. So all right. One more thing, Ankur ji. Means you in simple terms बात की हो and then you can understand what exactly IMS is, and my King of IMS model helps you, and it helps you get clarity, and clarity से ही आता है action, and action से होगी growth. Definitely. Thank you so much. So, Ankur ji. हाँ जी. Acha, actually I joined around 6:30, so I missed half of it, but still understood the concept of yours. Okay. And I tried scanning the that barcode also, but it was not working. The mobile numbers, we could not enter the mobile number there, so just passed it on the QR code again. And I'll tell you what I have current problems, and I really like the sheet of plan and actual there. All right. And just pass on the QR code and I'll fill it. Yes. I'll do that. मैं वो चेंज करके ना मैं उसको रेक्टिफाई करके मैं भेज देता हूँ वापस. Thank you so much. Thank you. मैं अभी ही डिस्प्ले कर पाऊंगा वो, so you will be able to do it. Okay. हाँ जी. Now you can scan this, and I think अब issue नहीं आना चाहिए. I would also request one to please click a photograph of this and put it in your group so that और भी कोई अगर बात करना चाहे IMS के लिए तो we can do that.
Thank you, Ankur ji. Thank you. Thank you for sharing. Thank you so much, Ankur ji. Most welcome. Ankur ji, हाँ जी. can we 3-4 industry people be together for 30 minutes? Does it make sense or it doesn't make sense? सर IMS जो है ना वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो नहीं, जैसे अभी ज्वेलरी में रिटेल वाले हो या ज्वेलरी में होलसेल वाले उनकी ऑलमोस्ट रोहन भाई आपका जो ज्वेलरी ग्रुप में we have Rohan bhai, can you? we have maybe 15 people or so in the jewelry group in our batch, and we all have a similar 80-90% similar problem. Okay, SKU wise, it will save your time, and we will learn by other each question and if answers. that is okay with you. I think it would be better कि आप लोग इंडिविजुअली बैठेंगे ना. I am honestly here एकदम मैं वेला बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, great. With you, no problem. I can help you individually because क्या है वो जब हम लोग 5 जन साथ में बैठते हैं ना तो 5 जन साथ में बैठने से वो प्रॉब्लम्स बाहर नहीं आती. वो कॉमन इश्यूज पे ही डिस्कशन चलता रहता है. Fair enough. I want fair enough. give you solutions so that solution करके एक्शन हो जाए, काम खत्म हो. Let's complete of all the problems relating to IMS. Done. So someone from your team will reach out on WhatsApp? On WhatsApp or on call? हाँ, मैंने इंडियन नंबर डाला है. I'm actually in Dubai, तो उस पे WhatsApp ही एक्टिव होगा. Sure. Yeah. All right. जो आपका इंडियन नंबर है उसमें आपको कॉल्स रिसीव हो जाते हैं फ्रॉम दुबई? नहीं, कॉल रिसीव नहीं होंगे. उस पे WhatsApp कॉलिंग आ जाती है, बट आई कॉल बैक. WhatsApp कर लेंगे. That's all right. So thank you. I'll take a leave, and I hope आपने एक फोटोग्राफ लेके डाल दियो so that other people who have left can also talk. Let's connect. Thank you. Bye bye. Thank you, Ankur ji. Thank you. Thank you.